Hello. In this video, we are going to discuss set 1 of reasoning section of CAT 2018 slot 1 paper. And this is very easy question. You are given an n by n square matrix to be filled with numerals so that no two adjacent cells has the same numeral. Two cells are called adjacent if they touch each other horizontally, vertically or diagonally. So a cell in one of the four corners has three cells adjacent to it, and a cell in the first or last of the column, which is not the corner, has five cells adjacent to it. For example, let us talk about this cell number 1. So this cell has 2, 3, and 4 number cell as adjacent cells, whereas this cell 3. So all the cells must be adjacent to 3. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. All these cells are adjacent to 3. Why? Because either they are diagonally linked or they are horizontally or they are vertically linked with this cell. Fine. And if we talk about cell number 8, so this, and this. These 5 cells are adjacent to it. Fine. So this is the definition of adjacent cell in this particular question. Any other cells has 8 cells adjacent to it. Fine. Now, what is the minimum number of different numerals needed to fill a 3 cross 3 square matrix? So we need to fill a 3 cross 3 square matrix. What is the minimum number of different numerals? See, यहाँ पे minimum पूछा गया है. In case यहाँ पे minimum नहीं पूछा होता तो what we could have done is हमने इनको A, B, C, D, E, F सब different से fill कर दिया होता. But now हमें इनको minimize करना है. हमें repeat करना है जो repeat हो पाए. Fine. I would request एक बार आपको try करिए set. उसके बाद आप आगे continue करें. Okay, so since we need to fill the we need to use the minimum number different numerals. So यहाँ पर हम a यूज करते हैं suppose. So here we need to use something different. B C D हमें यूज करना ही पड़ेगा. We don't have any other option. क्योंकि a के साथ में हम a दोबारा repeat नहीं कर सकते. Fine. Now a के adjacent are B, C and D. ठीक है? अब यदि हम एक काम करें वापस से यहाँ पर a और b रिपीट कर देते हैं तो आप देखेंगे अब d के एडजेसेंट कौन कौन आ रहा है a c b b एंड a. दो सेल कोई से भी एडजेसेंट नहीं हो रहे हैं. फाइन. अब यहाँ पर हम यदि वापस से a फिल कर देते हैं तो आप देखेंगे a और a कहीं पर भी एडजेसेंट नहीं हो रहे हैं. d यहाँ फिल कर देते हैं, c को रिपीट कर देते हैं और यहाँ पर भी a को ही रिपीट कर देते हैं. Now you will see we have used a total of 4 different numerals. और किसी का भी रिपीटिशन कहीं पे भी दो एडजेसेंट सेल में वी डोंट हैव द सेम नंबर. फाइन. तो आप देखेंगे कि यही जो कंडीशन थी नो टू एडजेसेंट सेल हैव द सेम न्यूमरल, ये हमने कंडीशन को एज इट इज रखा है. यहाँ कहीं भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा है. एंड वी हैव यूज्ड ओनली 4 डिफरेंट न्यूमरल्स. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 4. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूमरल्स needed to fill a 5 cross 5 square matrix? So again let us start with the same logic. A B C D हमने यहाँ fill कर दिया है. ये तो 4 fill करने ही पड़ेंगे. Fine, we cannot repeat A over here, है ना? तो ये तो different आने ही आने पड़ेंगे. Now in case I repeat A and B again over here, then D and C again over here, then A and B again over here. तो आप देखेंगे कहीं पे भी same चीज का repetition नहीं हो रहा है. कहीं पे भी दो adjacent block same numeral से fill नहीं है. B के एडजेसेंट कहीं पर भी B नहीं आ रहा है. यहाँ पर C के एडजेसेंट कहीं पर भी C नहीं आ रहा है. यहाँ पे भी आप देखेंगे D के एडजेसेंट कहीं पे भी D नहीं आ रहा है. राइट. और हम वापस से इसको A B A ये सेम हम रिपीट कर दें. D C D and then A B A and then D C D again and then A B A again. तो इस A के एडजेसेंट कहीं पर भी A नहीं है. इस B के एडजेसेंट we don't have any B which is adjacent to this. We don't have any A which is adjacent to this A. And so on. तो हम देखेंगे we have used only 4 different numerals और हमने 5 cross 5 की मैट्रिक्स को भी फिल कर दिया है completely. Fine. तो हमको केवल 4 ही different numerals की रिक्वायरमेंट थी in this case also. So next question. Suppose that you are allowed to make one mistake, that is one pair of adjacent cell can have same numeral. What is the minimum number of different numerals required to fill a 5 cross 5 matrix? तो अभी हमने जो फिल किया था एक बार उसी को कंप्लीट कर लेते हैं. A B A. Then we had C D C. Then we had again A B A. Again we had C D C. And again A B A. यहाँ पे कोई भी एडजेसेंट नहीं आ रहे थे. फाइन. अब we are allowed to make one mistake. तो किसी एक एडजेसेंट सेल में we can have the same numerals. तो सपोज मैं यहाँ पर B फिल कर देता हूँ. सपोज यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ A मैंने B फिल कर दिया. बाकी सारी कंडीशन तो मुझे एज इट इज रखनी पड़ेगी.
फाइन। अभी भी आप देखेंगे कि एक चेंज हमने किया है, इवन आफ्टर दैट हमें 4 की एटलीस्ट रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। फाइन, 4 से कम हम नहीं कर सकते हैं, 4 से ज्यादा तो ऑप्शन वैसे ही वैलिड नहीं है। वी हैव डन वन मिस्टेक और अभी हमने और कुछ चेंज नहीं किया है, तब भी 4 में हमारा पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो 4 से ऊपर वाले ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट किए जा सकता है, 4 से कम कोई ऑप्शन नहीं है। दैट मींस वी कैन सेफली से दैट 4 इज द करेक्ट आंसर। आप देखेंगे मैंने एक मिस्टेक की है, उसके बाद भी हाउ मेनी डिफरेंट न्यूमरल्स आर रिक्वायर्ड, 4। So the correct answer to this question is 4. Okay, last question of this set. Suppose that the adjacent cell must have different numerals. All the cell adjacent must have different numerals. So for example, earlier what we were doing, A, B, then we were putting a C, D, यहाँ पे वापस से हमने A, B रख दिया था, यहाँ पे वापस से C, D and C and इस तरह से किया था। अब आप देखेंगे कि D के adjacent यहाँ पर भी C हो रहा है, यहाँ पर भी C हो रहा है, so this is not allowed now. अब कोई से भी एडजेसेंट सेल में डिफरेंट सेम वैल्यूज नहीं हो सकती है। अर्लियर द कंडीशन वाज कि नो टू एडजेसेंट सेल मस्ट हैव द सेम न्यूमरल। नाउ द कंडीशन इज किसी भी सेल के, एक सेल के एडजेसेंट जो भी सेल्स हैं उनमें किसी में भी सेम वैल्यू नहीं हो सकती। तो आप देखेंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टली आ रहा है, यहाँ पर भी ये आ रहा है, तो दिस इज नॉट अलाउड नाउ। तो हाउ मेनी डिफरेंट न्यूमरल्स आर नाउ रिक्वायर्ड? सो लेट अस चेक कैसे किया जा सकता है इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर तो डिफरेंट फिल करना ही पड़ेगा, तो ABCD हमने फिल कर, फाइन। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर डी है, तो वी कैन नॉट राइट ए, बी और सी में से तो कुछ भी यहाँ प्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज देन वो डी के एडजेसेंट हो जाएंगे। तो लेट अस इंट्रोड्यूस न्यू न्यूमरल्स ई एंड एफ। अब जब हमने ई एफ को इंट्रोड्यूस किया है, तो अब हम यहाँ पर अगेन वी कैन नॉट यूज डी एंड सी। व्हाई? बिकॉज ई के एडजेसेंट डी एंड सी वो यूज नहीं कर सकते, बट वी कैन यूज ए एंड बी। ए और बी एडजेसेंट नहीं है, आप देखेंगे ई के एडजेसेंट ए और बी नहीं थे, so we can again repeat the same values. What we need to do is we need to minimize the number of different numerals. तो हम maximum time repeat करवाना चाहेंगे, जो जो value repeat करवा सकते हैं। Again we will repeat here D and C. Why? For the same reason. यहाँ पर आप देखेंगे कि A की जो adjacent है वो है E, F, D, C, D. All are different. Fine. अब आगे देखेंगे आप यहाँ पे B के adjacent we cannot place A, C, D place नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे अब क्या रख सकते हैं, वी कैन नॉट प्लेस एफ एज वेल। क्यों नहीं? क्योंकि एफ प्लेस करते ही सी के एडजेसेंट एफ हो जाएगा, जो कि पहले ही हो रखा है। वी कैन नॉट प्लेस ई एज वेल, क्योंकि ई प्लेस करते ही यहाँ पर सी के एडजेसेंट ई है, यहाँ पे भी सी के एडजेसेंट ई हो जाएगा। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू इंट्रोड्यूस सम न्यू वेरिएबल, सम न्यू न्यूमरल। लेट इट बी जी, एच, ये हमने तो इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जी और एच हमने इंट्रोड्यूस किया है, तो सी के एडजेसेंट सी जी आ रहा है, एच भी आ रहा है, तो हम यहाँ पे इनको रिपीट नहीं कर सकते। एक और नया न्यूमरल हम इंट्रोड्यूस करते हैं, लेट इट बी आई। तो अब आप देखेंगे सी के एडजेसेंट सारे डिफरेंट हैं, बी, ए, बी, जी, एच, आई, एफ, ई, डी, ऑल आर डिफरेंट, फाइन। अब जो ये जी है ये ऊपर एडजेसेंट आ रहा है, नीचे तो इनको रिपीट किया जा सकता है, सो वी कैन रिपीट जी एच ओवर हियर, यहाँ तो रिपीट किया जा सकता है, ठीक है। अब जो लिंक था सी का ए से वो भी ब्रेक हो चुका है, तो वी कैन अगेन यूज दिस सेम वैल्यू ए, यहाँ पर वी कैन यूज which value we can use D, ठीक है। यहाँ पर we can use E, then A, then we can use C और again D। इनफैक्ट ये सेम ही रिपीट कर देते हैं हम। अब हम देखेंगे D के एडजेसेंट जो भी हो रहे हैं या H के एडजेसेंट जो भी हो रहे हैं, A, B, C, D, E, F, G, I, all are different. I के एडजेसेंट, इस वाले I के एडजेसेंट अपन चेक करेंगे, तो it is C, H, D, E, A, G, B, F, all are different. तो हमने क्या किया है, एज इट इज ये रो रिपीट कर दिए, तो सिमिलरली हम ये सेम रो यहाँ पे भी रिपीट कर सकते हैं। तो देखेंगे बी, सी, एफ एंड देन बी एंड सी। अब आप इस ए को कंसीडर करते हैं फॉर एग्जांपल चेक करने के लिए, तो ऑल आर डिफरेंट, आई, ई, एफ, बी, सी, डी, एच, जी। इस ई को कंसीडर करते हैं तो एच, डी, सी, एफ, बी, ए, जी, आई, ऑल आर डिफरेंट। So basically we have completed this set. इस तरह से हमने सेट कंप्लीट कर लिया है। Now the question was how many minimum number of numerals, different numerals are required. So see we have used A से लेकर I तक हमने use किया है। So in total we have used 9 different numerals. So the correct answer to this question is option A, 9. So this was an easy set from CAT perspective. So I hope ये आपको clear होगा. Thank you so much.